we continue with this. That is, we had already started with the respiration chapter. Figure respiration and breathing chapter we have already started with, and now let us. Hanji. So now let us continue this further. That is the chapter of respiration that we have studied. Respiration में हमने ये बोला कि there is two phenomena, respiration internal and external respiration, जो कि एक पूरा respiration को complete करती हैं. ठीक है, उसके लिए अब हमने respiratory system भी पढ़ लिया कल. Respiratory system हमारा help करता है gases को collect करने में and further आगे लेके जाएगा for the internal cellular respiration. ठीक है, internal respiration या cellular respiration, there gets the exchange of gases. कल जो आपने पढ़ा, कल तक जहाँ पे हमने पढ़ा वो क्या था, simple कि बाहर से जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर आएगी, इनहेलेशन होगा और उसके बाद एक्सहेलेशन फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि हमने कल लंग स्ट्रक्चर पढ़ा सिर्फ, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा सिर्फ. अब जब गैसेस अंदर आती हैं, इंटरनल हमारे अंदर आ रही है, हम ब्रीद इन करते हैं, वी रेस्पायर है. ठीक है, समटाइम्स फोर्सफुली, समटाइम्स नॉर्मली, व्हाटसएवर द थिंग. हमने एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है, वो हमारी लंग्स में गया, लंग्स में जाके एल्वियोलाई तक सेटल हो गया. अब उसके आगे क्या, उसके आगे ये किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करता है, किस तरह से ये गैसेस जो एक्सचेंज है ये पूरी बॉडी में चलता है, हाउ इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यू एंड देन हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड is exchanged from the body tissues back into the lungs. That is what we call it as exchange of gases. That's the next topic for this. This is exchange of gases. Exchange of gases. For the exchange of gases, we know there are three particular sites for the exchanges. तीन साइट है, कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास we have, let me start it from here. सबसे पहला है there are the lungs. ठीक है, let's say this is a cross section of an alveoli, right? This is a cross section of alveoli. I'm starting it from top. बेटा आप भी अपना half of the page nearly लगेगा इसमें डायग्राम में, तो थोड़ी अच्छी खुली जगह पे बनाना है इसको. ठीक है, so this is the cross section of the lungs, let's say, or sorry, the alveoli. This is an air sac or the alveoli. After this, there is the blood vessels, that which are in just connection with the next, that is the alveolar air, also carrying the alveolar air towards the body tissues. यानी lungs और body tissues के बीच में जो connection है वो किस चीज का है, blood vessels. हाँ जी, one second. हाँ जी. So this is the blood vessel, right? Blood vessel, that which connects the lungs or the alveoli with the body tissue. ठीक है, ये alveoli है, blood vessel है. The last is the body tissues now. This is the basement membrane, and from here there arises the, जो आपने tissues, animal tissues chapter किया है, वहाँ पे हमने बनाए थे ना, there are settled the cells. Any type of the tissue you can make. I'm making the simple epithelial tissue, जहाँ absorptions होती हैं mainly. So this is the animal tissue or the body tissue, any kind of the tissue. This is body tissue. Done? Clear? So the three things that which are available here, they are the alveoli, the blood vessels, and the body tissues, right? The exchange of the gases takes place through these three body parts or the body organs, we say, right? How this happens and how this takes place. First of all, सबसे पहले क्या है, जो alveoli हैं, they are meant to take in oxygen. ठीक है, पहले inhalation होगा, ऑक्सीजन स्टार्ट करेगा, इनहेलेशन होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो इनिशियल स्टेप इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज फर्स्ट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, है ना. पहले ऑक्सीजन की एंट्री से बात करेंगे ना. जब ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन होनी है, दिस इज ऑल यू कैन से वर्किंग अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट. व्हाट डू वी कॉल दिस एज अ प्रेशर ग्रेडियंट? होता क्या है, व्हाट इज दिस प्रेशर ग्रेडियंट? दैट इज अलोंग विच देयर इज द मूवमेंट ऑफ द गैसेस. ठीक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट.
पढ़ा है? प्रोसेसेस में कहीं सुना है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड? क्या होता है? हाँ, सॉल्यूट्स में, सॉरी सॉल्वेंट्स में हम क्या कहते हैं, दैट इज द मोर concentration of the solvent is there across the membrane and on the other side there is less concentration. Osmosis process है ना, जिसमें हम कहते हैं कि that is through the semi permeable membrane it moves to the low concentration, from higher to low concentration, है ना. तो वो क्या है, high और low concentration. कहने का मतलब क्या है, it's a concentration gradient, है ना. हम वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करते हैं, that is the movement takes place along the concentration gradient, high to low. ऐसे ही यहाँ पे ये टर्म concentration की नहीं आती है, pressure gradient आता है. Along the pressure of the gases which is available in the atmosphere as well as within the lungs or within the body. तो उसके हिसाब से ये सारी कंडक्शन जो है, यानी जो आगे ट्रांसपोर्टेशन है या एक्सचेंज है, ये चल पाएगा. ठीक है. सो इट इज नॉट अगेंस्ट द concentration gradient, this is for the pressure gradient it works. Getting right? अब प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन, जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आई एम राइटिंग स्मॉल PO2, small PO2, that signifies pressure of oxygen, partial pressure of oxygen. Write it down. This is the partial pressure of oxygen, and similarly PCO2 is partial pressure of carbon dioxide, पार्शियल प्रेशर्स को मैं सिग्निफाई कर रही हूँ बेटा. लिखा है पार्शियल प्रेशर, कैसे लिखा है, दैट इज, इट इज रिटन एज स्मॉल p. पार्शियल प्रेशर इज स्मॉल p. अगर कैपिटल P साथ है तो दैट इज, इट रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी प्रेशर. कैपिटल P जो आएगा यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी प्रेशर. पल्मोनरी मतलब लंग्स का प्रेशर. ठीक है. और अगर मैं कैपिटल A लिख रही हूँ तो दैट रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Atmospheric pressure means the pressure of the gases within the atmosphere. Atmospheric pressure. Okay? हाँ जी, समझ आया ये टर्म्स जो यूज करनी है. सो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर, लेकिन कौन सा, पल्मोनरी, कैपिटल P स्मॉल p O2. पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर जो कि अंदर की बात हो रही है, एल्वियोलाई के अंदर की बात हो रही है, that is comparatively less as compared to the atmospheric partial pressure of oxygen. सुना मैंने क्या कहा अभी साथ साथ में, atmospheric partial pressure of oxygen, pulmonary partial pressure of oxygen. So comparatively the partial pressure of pulmonary is less and that of atmosphere is more. So that creates a pressure gradient. बन गया ना प्रेशर ग्रेडियंट. यहाँ पे कितना मोर है, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर जो होता है, दैट इज एटमॉस्फेयर में, इट इज 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. ठीक है, इट इज 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. दैट इज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द एयर, एटमॉस्फेयर. And that within the pulmonary pressure कितना है, it's only 104. So comparatively it is less millimeters pressure में. ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पल्मोनरी का कम हो गया, दोनों में डिफरेंस आया, दोनों का ग्रेडियंट सेट हुआ, एंड अल्टीमेटली दिस रश्ड इन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, बाहर क्यों नहीं जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि अंदर ऑलरेडी कम है. अब हम कहते हैं ना, हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल करते हैं. हमने कभी ये क्यों नहीं बोला कि ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं? गैस तो गैस है, हमारे फिल्टर छोड़ना लगे कि ऑक्सीजन ही सिर्फ अंदर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ बाहर आएगा. फिल्टर्स नहीं लगे, लेकिन ये प्रेशर ग्रेडियंट सेट है ऑलरेडी. यहाँ पे कम है, कम से ज्यादा में नहीं कभी भी जाएगी कोई भी चीज, ज्यादा से कम में आएगी. समझ आ गया इतना? ठीक है. नेक्स्ट, अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके साथ ही लगे हुए हैं ब्लड वेसल्स. यहाँ मैंने दूरी पे बनाए हैं, बीच बीच में गैप शो किए हैं, लेकिन अदरवाइज इफ दिस इज द एल्वियोलाई, इफ माय हैंड इज एल्वियोलाई, बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं ब्लड वेसल्स. ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा ताकि वो इजी डिफ्यूजन हो सके मटेरियल्स. ठीक है, ऐसे दिख रहा है ये दोनों हैंड्स में, इट इज नॉट 100% ऐसा जुड़ा हुआ.
क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होगा इजीली, ठीक है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा हल्का सा गैप होगा बीच में, माइन्यूट सा, एंड हेंस द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस. इट इज नॉट दैट फार अवे, इतना फार नहीं होता, सिर्फ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ द ऑक्सीजन गोज इन. दिस इज द ऑक्सीजन गोज फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड वेसल्स थ्रू डिफ्यूजन. डन. Pulmonary partial pressure of oxygen 104 millimeter. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन के बाद अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है, क्या है ये? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चल रहा है. अगेन थ्रू डिफ्यूजन नाउ इट एंटर्स इनटू द बॉडी टिश्यूज. दिस इज अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बट एज इट गोज डाउन, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे ये दूर जाएगा एल्वियोलाई से, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा. कैसे? यहाँ पे 104 था, नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली 95. इट इज डिक्रीजिंग. व्हेन इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यूज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रीचेस 40. Clear? In contrast, the partial pressure of carbon dioxide, इसी में alveoli के अंदर ही pulmonary partial pressure of carbon dioxide now, small p CO2 मैंने लिखा था ना, alveoli के अंदर small p CO2, capital P small p CO2, partial pressure of the pulmonary partial pressure of carbon dioxide. Inside that is 40. एल्वियोलाई के अंदर इट इज 40 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर. ठीक है, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि ऑक्सीजन का कम होते रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ते जाता है. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा. फिलहाल यहाँ पे इट वाज 40 इन द लंग्स, इट वाज सेम एज 40 इन दिस ब्लड वेसल, एंड हेयर इन द टिश्यूज क्योंकि यहाँ पे रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, it goes out to be 45. It goes out to be 45. ठीक है, समझ आया पहले इतना बात? ठीक है, यहाँ ये 45 क्यों हो गया, ये इसके यहाँ पे नहीं लिखो, दूसरी साइड ही लिख दो क्योंकि एक्सचेंज होगा यहाँ पे. सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट टू बी 45. ठीक है, व्हेन देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूट जाएंगे. यहाँ पे रिएक्शन लिखना है सेल के अंदर, सेल के अंदर लिखना है ये रिएक्शन. यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूट गया एंड दैट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ बी गिवन आउट, है ना. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन आया, पता चल गया इतना. ठीक है, ऑक्सीजन जब अंदर आई सेल में तो ग्लूकोज को तोड़ देगी. यही था ना हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था सिर्फ एल्वियोलाई तक. ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे जाती है, वो ये प्रोसेस है. ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, एंड ऑल्सो द प्रेशर्स काउंट दैट डिक्रीजेस. फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि यहाँ आके ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जहां सोर्स से निकलेगा तो वो एड ऑन होएगा ना, तो जब भी यहां से ये रिलीज आउट होगा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज गोइंग टू राइज नाउ इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ज्यादा हो गया? ठीक है, फिर वापस फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा. दिस इज थ्रू डिफ्यूजन इट गोज इनटू द व्हाट डू यू से, व्हाट इज दिस, ब्लड वेसल. Then from the blood vessel back into the alveoli. वापस चला गया, फिर से कैसे गया, डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, अब यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 था इनिशियली, बट फिर से रिड्यूस हो गया 40, है ना, क्योंकि प्रेशर तो वही रहना है ना. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मतलब यही सारा ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड वेसल्स. 40 रिड्यूस हो गया, वही 40 एल्वियोलाई में. ठीक है, 45 से 40 हो गया. क्लियर हुआ इतना? अब ये एक्सेल कैसे होगा,
क्योंकि partial pressure of pulmonary partial pressure of the carbon dioxide that is 40 in the alveoli, and the atmospheric partial pressure of carbon dioxide is very, very low. It is nearly 0.03 millimeters. एयर में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, 0.03. It's a big difference. So our carbon dioxide gets exhaled out. हाँ जी, डन. ठीक है, बनाओ. हाँ जी, complete this diagram. This is a very important diagram, and rather the values of this partial pressures, that is very, very important. ठीक है, ये कल ही वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है आपको. राइट द वैल्यूज ऑफ द पार्शियल, हाँ राइट द, क्या कह रहे हो, डायग्राम अगर आता है तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद डायग्राम होता है. 11th में अब आपका क्योंकि सब्जेक्टिव है तो बेटा ये याद रखना, ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी. ठीक है, आपको पेपर में डायग्राम में, सॉरी पेपर में इंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख के आएगा ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी और रिक्वायर्ड. तो वो आपके ऊपर है, आपने कहाँ देना है. जैसे मैं क्वेश्चन डालती हूँ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, अब ओनली एक्सप्लेनेशन विदाउट द डायग्राम इज हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू एक्सप्लेन ऑल्सो, है ना. सो यू शुड ड्रॉ इट अलॉन्ग साइड. ठीक है, ये अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अपना डायग्राम भी साथ दे पाओ. ऑल्सो इफ इट इज नॉट आस्क्ड, अगर पूछा भी नहीं है तो भी आप बना पाओ, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. आपके आंसर्स टिप्स पे होने चाहिए, फटाक से आंसर माइंड में आए, फटाक से आपकी एक्सप्लेनेशन हो, और ताही आप लोग इसमें पूरा जो टाइम है अपना डिवोट कर पाओगे कि साथ में एक्सप्रेशन में आप डायग्राम्स ऐड ऑन कर पाओ. समझ गए मेरी बात? नहीं, कई जगह तो आपको लिख के आएगा लेट्स से ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. वहां तो डायग्राम के नंबर हैं. ठीक है, यहाँ सिर्फ आपके एक्सप्रेशन है. अगर आप रिटन के साथ डायग्राम बनाते हो ना तो वो आपका एक्सप्रेशन ऐड ऑन होता है, पर उसके लिए डोंट टेक द रिस्क इफ योर हैंडराइटिंग स्पीड इज वेरी स्लो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर पूरा नहीं होगा और आप डायग्राम्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बायो में हर चीज में डायग्राम है. बायो अभी अगला कराऊंगी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वहां डायग्राम है. ठीक है, हर चीज में डायग्राम है. आपको जितनी चीजें कराएंगे डायग्राम या फ्लो चार्ट आएगा. तो अगर आप अब हर चीज में डायग्राम बनाने बैठोगे आपका पेपर नहीं पूरा होगा, है ना. तो ये अब आपके माइंड में पहले से प्री फ्रेम्ड होना चाहिए कि ये डायग्राम मैंने बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसी चीजें जो भी है मतलब तैयारी के लिए. ठीक है, दैट इज योर एक्सप्रेशन, दैट इज योर हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर आंसर्स ऑन योर आंसर शीट्स. ठीक है, हाँ जी, हो गया, बन गया, समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर, पक्का? हाँ जी, एनीवन सिटिंग ऑनलाइन, any confusion in this topic? Done? Okay, so now no confusions, set, सारा सही आ गया. Okay, now the next is the blood vessels that which are surrounding and how the exchanges takes place through the alveoli also. That is, the structure is also given in that. So through alveoli, how this goes through the alveoli, how the gaseous exchange goes through the alveoli. This is when the alveoli structure, if I make the alveoli structure, this is the alveoli, let's say. ठीक है, बना लो through alveoli. बातें बाद में कर लेना. You are here to study, not to talk with your friends. हाँ जी, so this is the alveoli. Through alveoli, how this exchange is taking place. जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब blood vessel है, that is not in direct contact with it, है ना. Blood vessel is not in direct contact with the alveolar membrane. So this is the alveoli and the inner membrane of the alveoli. So this is the inner membrane of the alveoli. बेटा alveoli तो एक mass of पूरा एक big structure of surface area structure है ना, वैसे entangled सा है. आप जैसे मर्जी बना सकते हो, ऐसा वहां पे बना लो. वो तो सिर्फ हाइपोथेटिकल जस्ट आपको लुक देने के लिए था. ठीक है, ये ऐसा वाला बना लो वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ जी, so this is the alveoli and the membrane, the outermost membrane of the alveoli.
Next running through this is the blood vessels. The blood vessels that which runs across or along, not across, along the alveoli. So this is the blood vessel that which is running. There is no 100% contact. I told you there is no contact. ठीक है, contact नहीं है. This is the blood vessels inner membrane now, that which is facing the alveoli, and this is away. The wall of the alveoli which is away. Hanji, done. Now label these. This is the blood vessel, and this is the alveoli or the air sac. Alveoli or air sac. Done. अब यहाँ पे जो gaseous exchange होगा, all the gases first how they go, that is from the passing of this one membrane of the alveoli, passing the gap in between, and then passing the blood vessels membrane. ठीक है, तो तीन चीजें इसने पास करी. कौन कौन सी? This is the inner membrane of the alveoli. Inner membrane of alveoli. नंबर 1 ये पास हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. नंबर 2 ये गैप बीच वाला. ठीक है, दिस इज अ इंट्रा सेलुलर स्पेस, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल्स के बीच की स्पेस. दो सेल किसके? लेकिन एक तरफ एल्वियोलाई के और एक तरफ ब्लड वेसल के. ठीक है, आप इसको इनर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मतलब दैट इज द बेस ऑफ द एल्वियोलाई. ठीक है, क्या क्या है ये गैसियस एक्सचेंज है ना. यहाँ से जो गैसेस हैं वो आगे ब्लड वेसल में कैसे जाएंगे. ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ जो एरो आ रहा है ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही ओबे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं. तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स लाइक दैट ऑफ डिस्क शेप्ड आरबीसीज, है ना. ये आगे फिर से काम में आएगा. आरबीसीज दे हैव द एचबी, दैट इज द हीमोग्लोबिन कंटैक्ट विद इट, राइट. दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कैरीज द मैक्सिमम ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के दो तरीके हैं, या तो वो प्लाज्मा के थ्रू जाए या आरबीसी के थ्रू जाए. ठीक है, ये आगे आपको करवाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का. किस किस तरह होती है, कौन उनको उठा के लेके जाता है. तो ऑक्सीजन जो है या प्लाज्मा उठाएगा या आरबीसी उठाएंगे. ठीक है, सो 3 membranes that passes are, one is basement membrane, then is the intercellular space, and then this is the membrane of the or the wall of blood vessel. membrane भी लिख सकते हो, wall भी लिख सकते हो, of blood vessel. फिर उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी जाएगी पासिंग थ्रू दीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट इनटू द एल्वियोलाई. ओके, from the blood vessels to the alveoli. Done. So I'll continue this tomorrow. Do read it from your book. If you have any controversy or any question, you can clarify it tomorrow, right? Thank you so much. God bless you all. Good.